my dear students, today we are going to do class 7 SST paper for half yearly examination. So let's start the paper here. As you know that the first section is MCQ. Medieval period of history starts in 8th century, which is not a component of human environment, is land. First state in India to introduce midday meal was Tamil Nadu. Uh, which new dynasty developed in eastern part of the country is Palas. Gold, petroleum and coal are the examples of minerals. Diarrhea is a type of waterborne disease. What was the language of administration under the Delhi Sultanate was Persian, which is caused by the sudden movements of earth is volcano. Who has real authority in the state is chief minister. The name of the residence of Mughal emperors in Delhi was the Red Fort. As we go up the layers of atmosphere, the pressure decreases. Next question is Samoan Island is located in Pacific Ocean. In section B, let me make you sure that the question is of 2 marks and you need to write the answer like you should get 2 marks. So let's see the question. Which are the main components of the environment? So for getting 2 marks, you have to write like this. Major components of environment are nature, natural, human-made and humans. Natural is land, water, air. Human-made is road, bridge, park, and humans is family, community and society. Next question is rock cycle. You have to explain the rock cycle like this. You can write igneous rocks change into sedimentary rocks, and igneous and sedimentary rocks under heat and pressure change into metamorphic, and then metamorphic after melting and wearing again into igneous and sedimentary. That's why it is called rock cycle. So you can show by this diagram also. igneous जो है वो पहले sedimentary में change होते हैं और कुछ igneous डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो जाते हैं. जो सेडिमेंट्री होते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर जो है ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं. जो मेटामॉर्फिक है वियरिंग टीयरिंग के बाद कुछ इग्नियस बन जाते हैं और कुछ सेडिमेंट्री बन जाते हैं. तो इस तरह की साइकिल भी आप शो कर सकते हैं. क्वेश्चन 15 इज व्हाट इज डबल बर्डन ऑफ वुमेन वर्कर. वुमेन वर्कर का डबल बर्डन क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं. Double burden means a working woman has to work at the workplace with full efforts and at home with household work again with full efforts. She is burdened from both sides. तो हमने 2 पॉइंट्स इसमें बताए कि डबल बर्डन का मतलब है कि घर में भी काम करना होता है, बाहर भी काम करना होता है और दोनों जगह पूरे एफर्ट्स लगाने होते हैं. दैट्स वाई शी इज डबल बर्डन फ्रॉम बोथ साइड्स. फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? यू हैव टू गिव 2 पॉइंट्स. फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म बाय ओवरफ्लो ऑफ रिवर एट द देयर बैंक्स. जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, पानी नदी से बाहर आ जाता है. एंड फ्लडिंग लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स. देन आपके एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं और कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? यू हैव टू राइट दे आर मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर. यही दोनों सबसे ज़्यादा है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस अप टू क्वेश्चन नंबर 17. 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 नंबर के क्वेश्चन को उसके लायक ज़रूर लिखना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन चोला एम्पायर. चोला एम्पायर में मेंबर ऑफ कमिटी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, तो उसके लिए हम बता देते हैं क्या करना पड़ेगा. देयर मस्ट बी द ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच रेवेन्यू इज कलेक्टेड. देयर शुड बी देयर ओन हाउस. उनकी एज 35 से 70 होनी चाहिए. दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वेदास. दे मस्ट बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स कौन कौन से थे. The central provinces under the control of Mughals were Delhi, Sindh, Kabul, Mewar, Marwar, Gujarat, Bihar, Bengal, Odisha and Deccan. The Mughals called the provinces सूबाज और वो इन जगह को कहते थे इनके सूबा हैं. After Akbar's administrative reforms, the Mughal Empire was divided into 12 सूबाज और अकबर के बाद इनको 12 सूबों में बांट दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थ के लेयर का है. तो सिर्फ आप इतना नहीं लिखेंगे कि 3 लेयर होती है क्रस्ट मेंटल कोर. आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन है. तो आप ऐसे बताएंगे क्रस्ट के बारे में. आउटर मोस्ट लेयर है, मोस्ट फर्टाइल लेयर है, मेंटल पीच की लेयर होती है, इसकी डेप्थ इतनी होती है, कोर सबसे अंदर की लेयर होती है ना. और उसको नाइफ भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अंदर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा निकल और आयरन होता है. इस तरह से आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देंगे. सेक्शन डी है अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस. सर्कल ऑफ जस्टिस आपने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, वही आपको एक्सप्लेन करना है. अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस आगे पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन से नोट करेंगे. अ किंग सर्वाइव्ड ऑन सोल्जर्स, सोल्जर वर्क फॉर सैलरी, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, पेजेंट्स वुड पे द टैक्स ओनली व्हेन दे आर हैप्पी. सो हु आर पेजेंट्स हियर? किसानों को पेजेंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का है. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है.
तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है इट इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड एवरी एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स allowed to vote. This is called universal adult franchisee and it is based on equality and democracy में सभी सिटीजन जो है वो अपने देश के लिए बिल्कुल बराबर होते हैं. देन एमएलएज का क्वेश्चन है, एमएलए कैसे बनते हैं मिनिस्टर्स. द पार्टी विच ऑब्टेन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट्स असेंबली में, उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है. रूलिंग पार्टी अपना एक लीडर चूज करती है. जो लीडर होता है उसको गवर्नर ओथ दिलाएगा और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा. चीफ मिनिस्टर फिर नॉमिनेट करेगा लिस्ट ऑफ कुछ मिनिस्टर्स को जो अपना कैबिनेट बनाने के लिए, और वो भेजेगा गवर्नर को. फिर गवर्नर क्या करेगा, इन सबको ओथ दिलाएगा और इनको मिनिस्टर बना देगा. सो हाउ दे बिकेम द मिनिस्टर्स. अब आपके ये सीसीटी क्वेश्चन है. देखिए जैसे ये पैराग्राफ आपको दे दिया है, इसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. तो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज थी, देखिए यहाँ पर है स्पिनिंग व्हील हो गई, इरिगेशन हो गया, वीविंग हो गई, फायरमैन कॉम्बैट हो गया. देन व्हाट टाइप ऑफ न्यू बीवरेजेस. बीवरेजेस मतलब ड्रिंक होता है, दैट इज टी एंड कॉफी. मेडिवल पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ, कैसे चेंजेस थे इसमें, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, हर तरह के चेंजेस थे. फिर अगला है आपका ये पैराग्राफ लिथोस्फीयर के बारे में. उसके क्वेश्चन है लिथोस्फीयर की प्लेट्स कौन सी होती हैं, तो आप बता देंगे कि बहुत सारी ब्रोकन प्लेट्स होती हैं इसमें. फिर वाई डू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव वेरी स्लोली. दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मैग्मा, क्योंकि मैग्मा धीरे धीरे मूव करता है, इसीलिए ये भी धीरे धीरे मूव करती है. द अर्थ मूवमेंट इज डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस. अर्थ का मूवमेंट किस बेस पर डिवाइड करता है. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज विच कॉज देम. अंदर की तरफ कौन से फोर्सेस हैं, तो उन फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, पढ़ा है हमने. फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंडोजेनिक. तो उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोर्सेस अर्थ के अंदर होते हैं उन्हीं फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. अगला सीसीटी क्वेश्चन है आपका हेल्थ के बारे में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ. तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है व्हाट आर आर फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द हेल्थ पार्ट ऑफ डिजीजेस. तो अप्रोप्रिएट फैक्टर्स जो हेल्थ को डिपेंड करते हैं वो पानी है, पॉल्यूशन है, ये सब होता है. दूसरा है व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट. क्या करना चाहिए, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस, लेबोरेटरी, टेस्टिंग, ये सब होना चाहिए, ब्लड बैंक. और रिक्वायरमेंट्स क्या है, रन अ गुड हेल्थ. टू रन फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए जो कि डायग्नोस को इलनेस को डायग्नोस कर पाएँ. इसके बाद आपका ये मैप है. तो मैप में एक ही चैप्टर, एक फर्स्ट चैप्टर में आपका मैप दे रखा है. देखिए दिल्ली कहाँ है, चाहमनाज की जगह कौन सी है, फिर कन्नौज कहाँ पर है आपका, पलास, गंगा, कलिंगा कहाँ है, चोलास, राष्ट्रकूटास. तो इस तरह से आपको इसको लर्न करना है. सो आई होप द पेपर इज़ वेरी इजी. कीप स्टडिंग. थैंक यू.